Morning student, today we will discuss haloalkanes and haloarenes chemical properties. Firstly, halogenation. We can know that haloalkanes and haloarenes. We will study in the topic of haloarenes. हम क्या पढ़ रहे हैं? haloarenes का पढ़ रहे हैं. Halogenation it means क्या होता है? Take place of halogen groups. Halogenation it means reaction with halogen group. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. This component react to the component in the presence of anhydrous aluminum trichloride. So when chlorobenzene react with the chlorine, then formation of 1,2-dichlorobenzene and 1,4-dichlorobenzene. So 2 moles of chlorine minus 2 HCl, because here first hydrogen are here removing and second components hydrogen are removing fourth number of hydrogen. So formation of 1,2-dichlorobenzene and 1,4-dichlorobenzene. फिर से देखें, halogenation means it means reaction with halogen. When haloarene react with the halogen in the presence of anhydrous aluminum trichloride, then formation of dichlorobenzene. Positions 1,2 are ortho-dichlorobenzene and para-dichlorobenzene. So 1,2-dichlorobenzene, 1,4. Another name ortho-dichlorobenzene and para-dichlorobenzene. Second, firstly, to reaction with, here you can also write fluorine, chlorine, bromine and iodine. आप कोई भी कंपोनेंट्स ले सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में. सेकेंड है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड. व्हेन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, अब ये आपको ध्यान होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कंसंट्रेट H2SO4 इसको आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा. डायरेक्टली नाइट्रिक एसिड कैन नॉट बी रिएक्टेड विथ chlorobenzene. So when chlorobenzene react with the nitric acid, then formation of nitric acid are break down HO and NO2, HNO3. So here HO and H and HO, H2O. So formation of 2-chloro nitro बेंजीन एंड 4-क्लोरोनाइट्रोबेंजीन. तो जब रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ हो रहा है तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है? 2-क्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड 4-क्लोरोनाइट्रोबेंजीन. फिर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, देन फॉर्मेशन ऑफ 2-chloro हाइड्रोजन सल्फेट एंड 4-chloro हाइड्रोजन सल्फेट. ओके, reaction with sulfuric acid H2SO4, then HOSO3 H minus 2H2O, 2HOSO3. ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन HOSO3H HO minus H2O. Sulfuric acid, then Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction when chlorobenzene react with the, when haloarene, it is a haloarene react with haloalkane in the presence of anhydrous aluminum trichloride. In the presence of anhydrous aluminum trichloride, then formation of chlorotoluene, chlorotoluene. So another reaction, firstly we will take in this step, you will see when chlorobenzene react with the methyl chloride or when haloarenes react with the haloalkane in the presence of anhydrous aluminum trichloride, then formation of 2-chlorotoluene. 2-chlorotoluene किसका फॉर्मेशन हो रहा है? 2-chlorotoluene का. तो ये हुआ आपका 2-chlorotoluene. Again see
अनदर वे, दूसरी तरह से अगर आप लिखना चाहें, देन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ मेथिल क्लोराइड in the presence of anhydrous aluminum trichloride, then formation of 2-chlorotoluene, or haloarine react with haloalkanes in the presence of anhydrous aluminum trichloride, then formation of 2-chlorotoluene. Again, Woods fitting reaction, when aryl halide react with alkyl halide, aryl halide and alkyl halide both are react in the presence of ether and react with sodium, presence of ether and react with sodium, then removing of salt and formation of toluene, then removing of salt NaCl, it is a salt and formation of toluene. So aryl halide plus sodium प्लस एल्किल हैलाइड, देन फॉर्मेशन ऑफ टॉलुइन. तो एरिल हैलाइड किससे रिएक्ट कर रहा है? एल्किल हैलाइड से. और कौन है उसका मेन रिएक्टेंट? सोडियम. तो सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम हैज रिमूविंग विथ क्लोरीन एटम. सोडियम क्या कर रहा है? क्लोरीन के साथ रिमूव हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है टॉलुइन का. देन फॉर्मेशन ऑफ DDT, डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन. तो व्हेन chlorobenzene react with chloral, when chlorobenzene react with chloral, then formation of removing of water molecules and formation of dichloro-diphenyl trichloroethane. ध्यान दीजिएगा, डाइफेनिल क्यों है? बिकॉज when benzene removing one hydrogen atom, benzene जब C6H5, we will known as phenyl. C6H5 is known as phenyl. तो when chlorobenzene react with the chloral, then removing of water molecules and formation of dichloro 1,2 dichloro diphenyl 1,2 diphenyl trichloro 2 carbon, hence ethane. डाइक्लोरो 1,2 डाइफेनिल ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन है एंड इथेन 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम. सो इट इज नोन एज डाइक्लोरो डाइफेनिल एंड ट्राइक्लोरो इथेन. इट्स अ DDT. अगेन व्हेन क्लोरोबेंजीन, फिर से एक बार देखिए कि अगर क्लोरोबेंजीन क्लोरस से रिएक्ट कर रहा है और उसको हम हीट कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन का. इसको बोला जाता है क्या? DDT. टॉपिक है क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमेथेन. फर्स्टली ट्राइक्लोरोमेथेन, इसका प्रिपरेशन कैसा होता है, किससे होता है? तो लेबोरेटरी मेथड है. फर्स्टली वी कैन टेक ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर को लेकर के हम और वाटर के साथ उसका पेस्ट बनाते हैं. व्हेन वी कैन रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर, रिएक्ट विद द वाटर, देन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिमूविंग ऑफ क्लोरीन गैस. क्या करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर को लेंगे और वाटर के साथ में उसका हम क्या करेंगे? मिक्सअप करेंगे, पेस्ट बनाएंगे. जैसे कि कोलगेट का पेस्ट होता है उस हिसाब से पेस्ट बनाएंगे और हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस उससे रिलीज़ हो जाएगी. फिर जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो फर्स्टली जो क्लोरीन गैस रिएक्ट हो रही है उसको हम क्या करेंगे? एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा. एथिल एल्कोहल रिएक्ट विद द क्लोरीन गैस, देन फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ एथिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गैस रिलीज होगी. तो क्या करेंगे? पहले तो ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करेंगे और उसका पेस्ट बनाएंगे. देन वी विल सी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन. अब क्लोरीन गैस रिएक्ट करेगी. क्लोरीन गैस आर रिएक्ट विद द एथिल एल्कोहल. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, क्लोरीन गैस रिएक्ट विद द एथिल एल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एल्डिहाइड रिएक्ट विथ अगेन क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस is a most reactive gas. Then aldehyde react with chloryl gas and formation of chloral. इसको आपने पहले भी पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ DDT में. तो उस स्टेप को भी बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि एल्डिहाइड रिएक्ट विद द क्लोरीन, एल्डिहाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन, देन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरल,
एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस क्लोरल का रिएक्शन होगा, क्लोरल रिएक्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरल रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ट्राइक्लोरोमेथेन एंड कैल्शियम फॉर्मेट। क्लोरल रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड कैल्शियम फॉर्मेट। इसका फिगर देख लेते हैं। कि कैसे रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पर पहले हम क्या लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं और वाटर के साथ इसका पहले क्या करते हैं, CaOCl2 + H2O पेस्ट बनाया, फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस का। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, इसको यहाँ से क्या करते हैं, कॉर्क से बंद करते हैं और फिर क्लोरीन गैस के साथ अब यहाँ पर हम एथिल एल्कोहल मिक्स करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही क्या करते हैं, CH3 CH2OH और इट इज आल्सो नोन एज C2H5OH। मीन्स ध्यान से देखेंगे, ये स्टैंड है, फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क है या राउंड बॉटम फ्लास्क है। राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने ब्लीचिंग पाउडर लिया, वाटर मिलाया, पेस्ट बना। पेस्ट बनने के बाद क्लोरीन गैस कॉर्क लगा देते हैं और एक ट्यूब लगाते हैं। इस ट्यूब से एथिल एल्कोहल ड्रॉप करते हैं तो जो क्लोरीन गैस है वो एथिल एल्कोहल से रिएक्ट करके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करती है एंड एल्डिहाइड अगेन रिएक्ट विथ, बिकॉज यहाँ मिक्स कर रहे हैं तो क्लोरीन गैस का प्रिपरेशन कंटिन्यू हो रहा है। तो एल्डिहाइड रिएक्ट विथ अगेन क्लोरीन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरल, क्लोरल का फॉर्मेशन होता है। और क्लोरल, ये क्लोरल फर्स्ट स्टेप में जो हमने ब्लीचिंग पाउडर लिया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन हुआ था, तो क्लोरल रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड कैल्शियम फॉर्मेट। ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। अगर हम चाहें कि क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन हुआ और क्लोरोफॉर्म को खुले में छोड़ देते हुए तुरंत रिएक्ट करके और किसका, फास्जीन गैस का प्रिपरेशन करता है, जो कि हार्मफुल होती है, जिससे कि हमको क्या होती है कि कुछ देर के लिए बेहोशी आती है। तो उसका रिएक्शन यही है कि जैसे ही क्लोरोफॉर्म को हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाते हैं तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ फास्जीन, फास्जीन का फॉर्मेशन होता है। और ये फास्जीन जो बनती है ये निश्चेतक का वर्क करती है। मैक्सिमम आपने देखा है डॉक्टर्स अगर पहले यूज़ करते थे क्लोरोफॉर्म का, अब इसका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हैवी डोज अगर हो गया तो इससे क्या होता है कि पेशेंट्स की क्या होती है, जान भी जा सकती है। तो ऑक्सीडेशन, तो क्लोरोफॉर्म क्यों हार्मफुल है, अब इसका एक रीज़न और है कि क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतल में क्यों रखा जाता है। वाई क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन ब्राउन बोतल, बिकॉज ब्राउन बॉटल कैन नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन डायरेक्टली, ऑक्सीजन के साथ वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट। एयर से रिएक्शन कब करेगा, एयर और अगर सनलाइट हो गया। इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म को डार्क में भी रखते हैं। किस में रखते हैं, डार्क में रखते हैं, अंधेरे में, कि वो रिएक्शन करके फास्जीन का प्रिपरेशन ना करे। तो ये क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी। फिर एक बार देखिए कि क्लोरोफॉर्म का हम प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिया, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमने कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया। तो फर्स्टली आपने लिया ब्लीचिंग पाउडर, सेकेंड ऑब्जेक्ट था आपका वाटर, थर्ड था एथिल एल्कोहल। इतने कंपोनेंट आपको लेने हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस 3 कंपोनेंट से ही हो रही है, ब्लीचिंग पाउडर, वाटर और एथिल एल्कोहल से। ब्लीचिंग पाउडर वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्लोरीन रिलीज हो रही है, वो क्लोरीन किससे रिएक्ट कर रही है, एथिल एल्कोहल से रिएक्ट कर रही है, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। एल्डिहाइड फिर से क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो क्लोरल बन रहा है, और जो क्लोरल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन हो रहा है।
तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। फर्स्ट स्टेप ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। सेकेंड स्टेप क्लोरीन रिएक्ट विथ एथिल अल्कोहल। क्लोरीन किससे रिएक्ट करेगा? एथिल अल्कोहल से। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्डिहाइड का। और थर्ड स्टेप में एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा क्लोरीन से और क्लोरल का फॉर्मेशन होगा। और फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे? क्लोरल रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? इज दैट क्लियर? ओके, सो ध्यान दे करके इसको आपको करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में है ऑक्सीडेशन, मीन्स क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देन फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल गैस फास्जीन एंड रिडक्शन, क्लोरोफॉर्म रेड्यूस एंड फॉर्मेशन ऑफ मेथेन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रही सर।